الوهن فقال قائل یا رسول اللہ وما الوهن قال حب الدنیا وکراہیت الموت. لمبی حدیث ہے، اس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے اسی طرح پڑھ دی. اللہ کے نبی 1400 سال پہلے بیان فرمایا، پیشن گوئی کی کہ اے میری امت کے لوگوں، اے گوشہ پور کے مسلمانوں، یاد رکھو ایک ایسا زمانہ آئے گا، ان قریب ایک ایسا دور آئے گا، ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دشمن قوم تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی. یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. جس طرح بھوکے لوگ دسترخوانوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو لوگ جا رہے ہیں، آپ لوگ جائیں نہیں، بیٹھیے. ابھی جو ہمارا پردھان مقرر ہے، جو مین وقتہ ہے، جناب مولانا منیر الدین تیمی صاحب، جو اتر دناج پور بنگال سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ابھی ان کا خطاب ہو رہا ہے. بہت ہی بہترین خطیب ہے ماشاء اللہ. آپ کے آنے کا مقصد انشاءاللہ کو سننے کے بعد پورا ہو جائے گا. تو میرے کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرے. تو میرے بھائیوں، نبی آ رہے ہیں کسی وجہ سے تو چائے وغیرہ پی کر کے آپ جو گئے بھی ہیں آپ لوٹ کرتے ہیں، اور ان کو سننے کے بعد ہی آپ یہاں سے جانے کی کوشش کریں. تو میرے بھائیوں، حدیث پر ذرا غور کیجئے. نبی نے فرمایا تھا 1400 سال پہلے، تم لات کھاؤ گے، جوتا کھاؤ گے، تمہاری کوئی ویلو نہیں ہوگی. ارے تم لب جہاد کے نام پر مارے جاؤ گے، ارے تم لب جہاد کے نام پر مارے جاؤ گے، موب لنچنگ کر کے مارے جاؤ گے، تمہاری کوئی ویلو نہیں ہوگی. کب؟ نبی سے پوچھا فقال قائل ومن قلت نحن یومئذ. نبی کہ اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ نبی نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر. نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. وجہ کیا ہے؟ شارٹ کٹ میں بتاؤں کیونکہ میرے بعد ایک مولانا آپ کے سامنے آنے والے. وجہ کیا بتائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہن نام کی ایک بیماری پیدا ہو جائے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما الوہن، یہ وہن بیماری کیا ہے؟ نبی نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی. یہ دنیا کی محبت بڑا خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں. دنیا کی محبت کو آپ اندر سے نکالیے. یقیناً دنیا کی محبت کو آپ اپنے اندر سے نکالیں گے تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی. ذرا نبی کی زندگی پر نظر ڈالیے کہ نبی نے دنیا کی محبت کو اور دنیا کے عیش و آرام کو کبھی اپنے قریب بھی آنے نہیں دیا. دنیا کی محبت کو کبھی اپنے پاس بھی نہیں آنے دیا. میرے بھائیوں، ایک حدیث دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دنیا میں زندگی گزارتے تھے. یہاں آہستہ سے بات کیجیے. نبی کس طرح دنیا میں زندگی گزارتے تھے میرے بھائی. ایک حدیث سن جائیے، ترمذی کی صحیح حدیث ہے. اس واقعہ کو دیکھیے. میں تیسری چیز کے اوپر آ جاؤں گا انشاءاللہ. حدیث اس طرح ہے کہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے دنیا دنیا کرنے والوں، نبی کس طرح زندگی گزارتے تھے ذرا دیکھو. اللہ کے نبی خجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں. اس چٹائی کے اوپر لیٹنے کی وجہ سے نبی کے پیٹھ کے اوپر چٹائیوں کا نشان پڑ جایا کرتا ہے. صحابہ نے دیکھا کہ اس چٹائی کے اوپر لیٹنے کی وجہ سے، اس چٹائی کے اوپر سونے کی وجہ سے نبی کی پیٹھ کے اوپر نشانی آ گئی ہے، نبی کی پیٹھ کے اوپر نشان پڑ گیا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، اگر آپ کہیں تو کیا آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کر دوں؟ اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دے تو آپ کے لیے ایسا بستر کا انتظام نہ کر دوں جس بستر کے اوپر لیٹنے کی وجہ سے اور سونے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ کے اوپر نشانی نہ پڑے. نبی سے کہا اللہ کے نبی، کیا آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کر دوں؟ آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام نہ کر دوں؟ تو نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، نہیں، تم یہ کہتے ہو کہ میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کرو، ایسے بستر کا کہ جس کے اوپر میں آرام سے سوں، جس کے اوپر میں آرام سے لیٹوں. نہیں اے میرے صحابہ، نہیں، بلکہ میں اس دنیا کے اندر آرام کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں اس دنیا کے اندر اس مسافر کی حیثیت سے آیا ہوں جو مسافر جب راہ چلتا ہے تو تھک جاتا ہے، کسی درخت کے نیچے سوتا ہے اور تھوڑی دیر آرام فرمانے کے بعد وہ اپنی منزل کو نکل جاتا ہے، وہ اپنی منزل کو چلا جاتا ہے. میرے پیارے ساتھ
साथियों, अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी से भी हमें और आपको ये मैसेज दिया, हमें और आपको अपनी ज़िंदगी से भी ये सबक दिया मेरे भाइयों। इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया परस्ती को आप अपने अंदर से निकालिए। क्यों? क्योंकि आज समाज के अंदर जितने भी बिगाड़ हैं, आज समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं मेरे भाइयों, इसकी वजह है कि हम और आप दुनिया परस्ती में मुब्तला हो गए। बताइए वो कौन सी बुराई है दुनिया परस्ती की वजह से जो आज हमारे समाज में मौजूद नहीं? एक बुराई है ना जो बड़ी तेजी के साथ समाज को खोखला करते जा रही है। वो बुराई क्या है? सूद के ऊपर सूदी कारोबार करना। करते हैं ना, बुरा मत मानना मेरे भाइयों। आज हमारे मंझेली में, गुसैपुर में, टिक्कर टोला में कितने ऐसे मुसलमान हैं जो सूदी कारोबार में आज मुलव्विज़ हैं, सूदी कारोबार में आज गिरफ्तार है। सूदी कारोबार एक कितना अजीम गुनाह है ना। क्यों? दुनिया परस्ती की वजह से। जब किसी को पैसा देता है इस शर्त के साथ, देखो मैं 1000 दे रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद जब तुम पैसा लौटाने आओगे तो 1100 रुपया लूँगा। क्यों? दुनिया की वजह से, ताकि दुनिया में उनकी प्रॉपर्टी हो जाए, उनका माल बढ़ जाए, उनकी दौलत में इजाफा हो जाए। इसीलिए सूद कितना अजीम गुनाह है, ये आज हमारे समाज के अंदर फैल रहा है। सूद मेरे भाइयों, सूद इतना अजीम गुनाह है मेरे भाइयों जो आज हमारे समाज में धीरे धीरे फैल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, ऐ मंझेली वालों, ऐ गुसैपुर वालों, सूदी कारोबार को बंद करो। अगर तुम सूदी कारोबार को बंद नहीं करोगे तो तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। इस्लाम के अंदर याद रखिएगा, इस्लाम के अंदर कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि जिसके करने पर अल्लाह तबारक व तआला खुद कहता हो कि अगर तुम इसको नहीं छोड़ोगे तो मेरे साथ और मेरे रसूल के साथ तुम जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन आज धीरे धीरे जो बुराई आज हमारे समाज में फैल रही है, जो गुनाह अजीम गुनाह हमारे समाज में फैल रहा है सूद की शक्ल में, इसके ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है कि ऐ मुसलमानों, सूदी कारोबार को बंद करो। नहीं, सूद खाना, लेना देना सब हराम है, बंद करो। दुनिया की मोहब्बत में तुम सूदी कारोबार में मत आओ। क्यों? अगर तुम सूद खाना बंद नहीं करोगे तो तुम मेरे साथ और मेरे रसूल के साथ जंग करने के लिए, लड़ाई के लिए तुम तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर। सूद इतना अजीम गुनाह है, लेकिन वो भी आज हमारे समाज में फैल रहा है। क्यों? दुनिया परस्ती की वजह से। सूद कितना बड़ा गुनाह। एक हदीस के अंदर तो ये मौजूद है कि 1 दिरहम का सूद खाना इतना बड़ा गुनाह है कि 36 मरतबा ज़िना करने से भी बड़ा। अल्लाह अकबर। 36 मरतबा सूदी कारोबार जो करते हैं, अगर 1 रुपया का भी आप सूद खाते हैं ना, हाजी साहब, आप जो 1 रुपया का सूद खाते हैं ना, अगर कोई इंसान 1 रुपया का सूद खाए, 1 दिरहम का सूद खाए, तो नबी फरमाते हैं ये इतना बड़ा गुनाह है कि 36 मरतबा ज़िना करने से भी बड़ा गुनाह है। अब जानते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से एक मरवी है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि अगर किसी गांव में, सुनो, अगर मंझेली में, टिक्कर टोला में, गोशैपुर में, कहीं पर भी अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, सही हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस हदीस का रावी हैं कि अगर गांव में सूदी कारोबार अगर फ़रोख्त पा जाए, अगर गांव में कोई सूदी कारोबार शुरू कर दे तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि उस गांव में अल्लाह का अजाब आना हलाल हो जाता है। यानी अजाब आएगा, हर हाल में आएगा, क्योंकि दुनिया के सारे मौलवी झूठे हो सकते हैं, सारे मदनी झूठे हो सकते हैं, सारे मुकर्रिर झूठे हो सकते हैं, लेकिन मेरे नबी की बात झूठी नहीं हो सकती, मेरा नबी झूठा नहीं हो सकता। और मेरे नबी ने फरमाया जब किसी गांव में, किसी समाज में, किसी मुआशरा में सूदी कारोबार आम हो जाए तो इंतजार करो, अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आएगा, क्योंकि अल्लाह का अजाब उस गांव के ऊपर आना हलाल हो जाता है मेरे भाइयों। सूदी कारोबार क्यों? दुनिया परस्ती की वजह से। और एक जुर्म और एक बिगाड़, वो क्या है? जहेज के ऊपर, जहेज लेना। जेज समझते हैं ना, जेज समझते हैं ना। हमारे गांव में कुछ भी नहीं है, 1 नंबर का लल्लू है। अगर उससे कहा जाए नमाज पढ़ते हो, कहा मौलवी साहब नमाज कैसे पढ़ूंगा, सूरह फातिहा भी नहीं जानता हूँ। लल्लू है 1 नंबर का, लोफर है। लेकिन शादी करने के लिए जाएगा तो चाय की दुकान में बैठ कर कहेगा, क्या कहेगा? 5 लाख रुपया लिया। कितना लिया? 5 लाख रुपया ले, बगैर जहेज के। ये भी हमारे समाज के अंदर बुराई है ना। क्यों? दुनिया परस्ती की वजह से। जहेज लूंगा तो माल की मोहब्बत है ना, हमें परवाह नहीं है कि हलाल है हराम है, क्योंकि नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था एक ऐसा ज़माना आएगा कि इंसान को परवाह नहीं होगी कि वो हलाल तरीके से माल कमा रहा है, हराम तरीके से माल कमा रहा है। आज हमारे समाज के अंदर ये भी हो रहा है। क्या हो रहा है? लड़के के निकाह के लिए, लड़के की शादी के लिए लड़की वाले से दहेज मांगते कि नहीं मांगते हैं? शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, भिखारी हो 1 नंबर का, तो जामा मस्जिद में चला जाना, दिल्ली में 1 कटोरा लेकर बैठ जाना।
लड़की के बाप के पास पैसा मांगने जाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तू जैसा मुसलमान को तो संधा घाट की नदी में डूब कर मर जाना चाहिए। बेगैरत मुसलमानों की फहरिस्त में अपना नाम लिखाकर, मोमिनों की फहरिस्त में अपना नाम लिखाकर लड़की वालों से पैसा मांगते हो। चंद पैसों के लिए शर्म आनी चाहिए मेरे भाइयों। इस चीज़ को भी मुख्तसर अंदाज में बता के जा रहा हूँ, इस चीज़ को भी ख़त्म कीजिए, क्योंकि जहेज के ऊपर, दहेज जिसको हम दहेज कहते हैं, दहेज के ऊपर पैसा लेना मेरे भाइयों हराम है। जहेज देना भी हराम है, लेना भी हराम है मेरे भाइयों। इसलिए आप फख्र के साथ आप दहेज ना ले, वरना याद रखें कल क़यामत के दिन आपकी गिरफ्तारी ज़रूर होगी अल्लाह की अदालत में। इस चीज़ को भी ख़त्म कीजिए। ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कब ख़त्म होंगी? जब दुनिया की मोहब्बत आपके अंदर से निकल जाएगी। इसलिए ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपके लिए बेहतर बन जाए, समाज बेहतर हो जाए, समाज के अंदर से बुराइयां ख़त्म हो जाए, तो पहली जिम्मेदारी ये है कि आप अपने अंदर से क्या करें? दुनिया की मोहब्बत को ख़त्म कर दें। ये दूसरी वजह हो गई। तीसरी वजह पर ज़रा गौर कीजिए। पहली वजह समाज में बिगाड़ पैदा होने की, मैंने क्या बताया कि हम बेमकसद होकर ज़िंदगी गुजारते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने आप लोगों के सामने बताया, वो दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया की मोहब्बत को आप अपने अंदर से निकालिए। और तीसरी चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए। तीसरी चीज़ क्या है? हमारी और आपकी बर्बादी की तीसरी वजह क्या है? মগরবার থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত মধু খেলেন আর চুইসা কে যাবে চলে এসেছেন। আল্লাহ রসুলের মাহফিলকে ছেড়ে দেন না। একদম আপনাদের আকাঙ্ক্ষিত বক্তা, চাহিদা বক্তা, মধুর সুর, মধুর কণ্ঠ একজন বক্তা আছে, ওনাকে বেজুদা করে যায় না। আপনারা ধৈর্যভাবে বসে থাকেন, চলে আসছে, যায় না কেউ। দয়াপূর্বক বলছি আপনাদেরকে। ये पता है कि रात के 12 बज चुके हैं तो आदमी कभी 12 बज जाता है। हर जलसे का यही सिस्टम होता है। अगर ज़्यादा ज़रूरत है जाना तो आप जा सकते हैं, वरना आप बैठे रहें, क्योंकि रात ज़्यादा हो रही है। मेरे बाद एक मौलाना है जो बंगाल से आए हुए हैं, इंशाल्लाह उनका भी खिताब आप लोगों के सामने होगा, उनकी भी तकरीर आप लोगों के सामने होंगी। मौलाना आ गए क्या? नहीं आए। अभी मेरा वक्त है, 5 चीज़ों का जिक्र मैं आपके सामने करूँगा। 2 चीज़ें वही, 3 चीज़ें पर शॉर्टकट में मैं आप लोगों के सामने बताया जाता हूँ। इन चीज़ों को आप अपने अंदर सटाइए, आपका समाज सुधर जाएगा। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए। बिगाड़ के जी, अच्छा 5 मिनट में ख़त्म करूँ। वो क्या है? कुरान और हदीस से दूर हो जाना मेरे भाइयों। कुरान हदीस से दूर हो जाना। कुरान हदीस मतलब आज हमने और आपने कुरान हदीस को छोड़ दिया। इसकी वजह से आज हमारे समाज के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है। और आप देखिए कि हम और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। आज क्या हम कुरान हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या आज हम और आप सहाबा के मनहज पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं? मेरे भाइयों, कुरान और हदीस को मजबूती के साथ थाम लीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नती। ए लोगों, अगर तुम कुरान और हदीस को मजबूती के साथ थाम लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। और जब तुम गुमराह नहीं होगे तो तुम्हारा समाज भी गुमराह नहीं होगा। जब तुम गुमराह नहीं होगे तो तुम्हारी सोसाइटी भी गुमराह नहीं होगी मेरे भाइयों। इसलिए ज़रूरी है कि कुरान और हदीस को मजबूती के साथ थाम लीजिए। कुरान और हदीस को हमने 2 तरीके से छोड़े हुए, 2 तरीके से शॉर्टकट में बताऊं। एक तरीका तो ये है कि हम और आप बिल्कुल कुरान और हदीस को छोड़ दिया, और दूसरा ये है कि हम और आप शरीयत के नाम पर अमल तो कर रहे हैं, कुरान और हदीस के नाम पर अमल तो करते हैं, दीन के नाम पर अमल तो करते हैं, लेकिन उसकी दलील कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है, उसकी दलील कुरान और हदीस से नहीं मिलती है। तो 2 तरीके से हमने और आपने कुरान हदीस को छोड़ रखा है। इसलिए इलाज क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपका समाज के अंदर से बुराई खत्म हो जाए, आपके समाज की इस्लाह हो जाए, आपकी भी इस्लाह हो जाए, तो आप 2 चीज़ों को मजबूती के साथ थाम लीजिए। एक चीज़ है किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, और एक चीज़ है नबी की सुन्नत, यानी हदीस को मजबूती के साथ थाम लीजिए। तीसरी चीज़ हो गई, और चौथी चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए। चौथी चीज़ है दूसरों के रस्म और रिवाज को। आज हमारे समाज में रहने वाले लोग दूसरों के कल्चर को अपना रहे हैं। आज हमारे समाज के अंदर ऐसा कल्चर आ रहा है जो मेरे भाइयों मुसलमानों का कल्चर नहीं है मेरे भाइयों। तो इस चीज़ को भी ख़त्म कीजिए, क्योंकि नबी ने बयान फरमाया था, लतत्तबउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन शिब्रन व ज़िराअन बिज़राइन हत्ता लौ दख़लू ज़ुहरा ज़ब्बिन तबिअतमुहु कुलना या रसूल अल्लाह अल यहूद वन नसारा फमन। यानी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था कि मेरी उम्मत के लोगों, तुम दूसरों की पैरवी करते करते, दूसरों की इत्तबा करते करते, दूसरों की नकल करते करते इस हाल तक पहुँच जाओगे कि अगर वो लोग यानी यहूद और नसारा अगर किसी जानवर के बिल में दाखिल हो जाए तो तुम भी जानवर के बिल में दाखिल हो जाओगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ज़रूरत है कि हम दूसरों के कल्चर को अपने समाज में ना लाएं, दूसरों के रस्म और रवाज को हम अपने समाज के अंदर जगह ना दें। मेरे भाइयों, हम दूसरों की नक्काली ना करें, क्योंकि इस्लाम के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद है, नबी की ज़िंदगी में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, बस उसको मद्देनज़र रखते हुए आप ज़िंदगी गुजारिए। ये चौथी चीज़ हो गई। 5वीं चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए। 5वीं चीज़ क्या है? खास करके
समाज के अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, आज हमारे समाज के अंदर जो बुराई पैदा हो रही है, इसका एक जिम्मेदार हमारे समाज में रहने वाले नौजवान तबका है। नौजवान तबका, बात समझ में आ रही है? नौजवानों को सुधरना पड़ेगा। अगर समाज के अंदर से बुराई खत्म करना चाहे, समाज के अंदर से गलत काम जो हो रहे हैं इन पर रोक लगाना चाहे, तो नौजवान को आगे आना पड़ेगा, नौजवान को पेश रहना पड़ेगा इस काम में मेरे भाइयों। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मलाल के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे नौजवानों को इसकी भी कोई परवाह नहीं, इसका भी एहसास नहीं कि आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। इसलिए नौजवानों, जरूरी है कि आपको सुधरना पड़ेगा और आपके जवानी की कद्र आपको करनी होगी, आपके जवानी की अहमियत आपको समझनी होगी, क्योंकि जवानी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है। नौजवानों, अगर तुम अपनी जवानी को गलत चीज़ों में खर्च करोगे, नौजवानों अगर तुम अपनी जवानी को अगर लड़कियों के पीछे भाग कर अगर प्यार के नाम पर, इश्क के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, गलत चीज़ों पर अगर तुम सर्फ करोगे, तो याद रखना कल क़यामत के रोज़ आपसे सवाल किया जाएगा। इसलिए जवानी को आप सही कामों में सर्फ कीजिए, क्योंकि एक हदीस के अंदर है, तिरमिज़ी की हदीस है कि कल क़यामत के रोज़ 5 सवाल पूछा जाएगा और कोई भी इंसान अपनी जगह से उस वक़्त तक नहीं हट सकता जब तक वो 5 सवालों के जवाब ना दे। 5 सवाल पूछा जाएगा। 5 सवाल में एक सवाल ये होगा कि बताओ कि तुमने अपनी जवानी को कहाँ पे खर्च किया था, तुमने अपनी जवानी को किन कामों में सर्फ किया था। इसलिए समाज को सुधरना चाहते हैं तो नौजवानों का आगे आना पड़ेगा और उनकी जवानी को सही कामों में खर्च करना पड़ेगा, जवानी को सही कामों में इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये 5वीं चीज़ हो गई। माजरत के साथ और 2 मिनट लेना चाहूँगा। और लास्ट चीज़ क्या है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 5 चीज़ हो गई। लास्ट चीज़, समाज में बिगाड़ क्यों पैदा हो रहा है, इसकी वजह ये है, इसका असबाब में से एक सबब ये है कि आज हमारे अंदर से, समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं, हमारे अंदर से ये एहसास ख़त्म हो गया है। क्या एहसास? कि कल मरना होगा और अल्लाह की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। ये एहसास नहीं है, इसलिए खुद की भी इस्लाह नहीं हो रही है। इसलिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को आप अपने अंदर पैदा करें। वो क्या चीज़ है कि कल क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में खड़ा होकर तमाम चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। यकीन मानिए, अगर ये एहसास आपके अंदर पैदा हो जाए तो आपकी भी इस्लाह हो जाएगी, आपके समाज की भी इस्लाह हो जाएगी, आपकी सोसाइटी की भी इस्लाह हो जाएगी। वो चीज़ क्या है कि कल क़यामत के रोज़ अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा। इस एहसास को सामने रखते हुए एक हदीस में आपके सामने, हदीस के अंदर से एक वाक़या पढ़ूंगा, एक वाक़या बताऊंगा और वाक़या के बाद इंशाअल्लाह इसी के साथ आज की तकरीर में इख्तिताम करूंगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मैं तो इलाकाई हूँ, बाहर से जो आए हैं उनको सुनना है, मुझे तो आप लोग बार बार सुनते रहते हैं। देखिए, ये चीज़ अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। हदीस देखिए, सही हदीस है। एक आदमी है, नौजवान है, नौजवानों को सामने रखते हुए, एक नौजवान है जिसका नाम है मरसद। एक लड़की से प्यार था इस्लाम लाने से पहले, जिस तरह आज हमारे नौजवानों का होता है। हाँ, ये मसला भी याद रखिएगा, ये जो निकाह से पहले लड़की के साथ बातचीत करना, प्यार में आना, मोहब्बत में आना, घूमने ले जाना, होटल में जाना, अभी 31st नाइट यानी नया साल आ रहा है, नया साल में घूमने ले जाना, मेरे भाइयों ये मुसलमानों का काम नहीं है, ये हमारा और आपका काम नहीं, तो गैरों का काम है। ये तो मुश्रिकों का काम है, उन लोगों का काम है जो आखिरत पर ईमान न रखता हो, अल्लाह पर ईमान न रखता हो। खबरदार, इन तमाम चीज़ों से आप जो है खबरदार हो जाइए और इन तमाम चीज़ों को आप अपने अंदर से ख़त्म कीजिए। आइए इस वाक़या को और इस हदीस को ज़रा सामने रखिए। ऐ लोगों, इस एहसास को आप अपने अंदर पैदा कर लो, इंशाअल्लाह आपकी इस्लाह हो जाएगी। हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से जा रहे हैं, चांदनी रात है, घर के अंदर से यानी खिड़की के अंदर से एक लड़की है, उसकी माशूका है जिसका नाम है अनाक। अनाक देख लेती है। रात के अंधेरे में, चांदनी रात है, मरसद जा रहे हैं, अनाक की नज़र मरसद के ऊपर पड़ जाती है। अनाक आती, आने के बाद कहती है, ऐ मरसद आ जाओ, घर में आ जाओ। ऐ मरसद, रात का अंधेरा है, रात के यानी रात का अंधेरा है, कोई सारे लोग सोया हुआ है, कोई जागा हुआ भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, कानों कान तक खबर नहीं होंगी। ऐ मरसद आ जाओ, हम दोनों एक साथ रात कटाते हैं, एक साथ एंजॉय करते हैं, आज की रात मस्ती करते हैं, यानी दावत गुनाह दे रही है। हजरत मरसद कहते हैं, नहीं अनाक, ऐ अनाक, तुम मुझे दावत गुनाह दे रही हो,
नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे साथ गलत काम नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ और मैं इस्लाम ला चुका हूँ। इन्नल इस्लाम ला यहदिमु मा कान क़ब्लहु, इस्लाम लाने से पहले तुम्हारे साथ मेरा संपर्क था, मैं गुनाहगार था, इस्लाम ले आया, मेरा तमाम के तमाम गुनाह मिटा दिया गया। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, तुम मुझे दावत गुनाह दे रही है, मैं तुम्हारे साथ गलत काम नहीं कर सकता। औरत यानी वो लड़की वो अनाक जवाब देती है, ऐ मरसद कोई बात नहीं, ऐ मरसद मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ऐ मरसद किसी की नज़र में भी नहीं आओगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आ जाओ, आज की रात हम दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं, आज की रात हम दोनों मिलकर मस्ती करते हैं, किसी को खबर नहीं होगी, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन एहसास देखिए, हजरत मरसद जवाब देते हैं, ऐ अनाक तुम ये कह रही हो कि रात का अंधेरा है, सब सोया हुआ है, किसी को खबर नहीं होगी, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐ अनाक मेरा अल्लाह तो देख रहा है, अगर आज की रात में तुम्हारे साथ गलत काम कर लिया, अगर आज की रात में तुम्हारे पास ठहर गया, तो याद रखो कल क़यामत के दिन रब की अदालत में खड़ा होकर मुझसे सवाल पूछा जाएगा और इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। ये चीज़, यही एहसास, क्या एहसास कि अल्लाह देख रहा है और कल क़यामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मुख्तसर अंदाज में 1 घंटे के अंदर जो मैंने आपको बताना चाहा कि आज हमारे समाज के अंदर बिगाड़ क्यों है और आज हमारे समाज के अंदर बुराइयां क्यों पनप रही है, इसकी वजह हमने और आपने मैंने बताया कि इसके अव्वल जिम्मेदार आप खुद हैं। उस